Hello everyone, this is Chitra Lal, faculty of TGT SST Suraj School Rewari. Today we will start a new chapter, chapter number 2 of Geography, Latitudes and Longitudes. In this chapter we will discuss about few topics like the Earth, globe, latitude, important parallels of latitude, temperature zones, longitudes, local time and international dateline. So let's start with our first topic, that is the Earth. The shape of the Earth is geoid. It is bulges at the center and is slightly flattened at the poles. The Earth rotates on its axis. The end point of the axis of the Earth are called poles. The pole which points towards the pole star is called North Pole. The opposite end is called South Pole. Students, as you know that the shape of the Earth is geoid. इट इज़ लाइक एन ऑरेंज. जो हमारे अर्थ की जो शेप है वो कैसी है, एक ऑरेंज की तरह है. और इसका जो मिड पॉइंट है हमारी अर्थ का वो कौन सा है, वो है इक्वेटर. और इक्वेटर के दोनों तरफ से जो हमारी अर्थ है वो थोड़ी उठी हुई है, और जो दोनों पोल्स हैं यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ से ये थोड़ी सी फ्लैट है. और जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है, और जहाँ से अर्थ का एक्सिस स्टार्ट होता है और जहाँ पर इस एक्सिस का एंड होता है, ये दोनों एंड पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड पोल्स. इन्हें पोल्स कहा जाता है. और ऐसा माना जाता है कि जो पोल स्टार है यानी कि जो हमारा ध्रुव तारा है वो एग्जैक्टली ओवरहेड द नॉर्थ पोल, वो बिल्कुल जो है नॉर्थ पोल के बिल्कुल ऊपर पाया जाता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ पोल. और इसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन है यानी जो इसकी दूसरी दिशा में जो पोल है, दैट इज़ कॉल्ड साउथ पोल. उसे साउथ पोल कहा जाता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोब. It is the true representation of the Earth. The imaginary lines drawn on the globe are called latitudes and longitude. Globe क्या होता है? Globe is the true model. It is a 3D model of the Earth. और जो globe जो है वो हमारी Earth का बिल्कुल रेप्लिका होता है, उसकी बिल्कुल कॉपी होती है. और इसके ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस जो हैं ड्रॉ की जाती हैं प्लेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए. And these lines are called latitudes and longitudes. You can see in this picture that there is a ball like structure that is called earth. जो इसमें जो बॉल की तरह का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो हमारी अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है. and there are few lines on this ball that are going from north to south and east to west. These are called longitude and latitude. Now we will discuss about the latitude. The imaginary lines which runs from east to west are called latitudes. The equator is the longest latitude, which is represented by 0 degree. It divides the earth into northern and the southern hemispheres. Lines of latitudes are drawn at intervals of 1 degree. Latitude किसे कहते हैं? जैसा कि अभी हमने देखा कि कुछ इमेजिनरी लाइंस जो है हमारे ग्लोब के ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर ड्रॉ की गई हैं. इसमें जो लाइंस जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती हैं, दे आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. और इन लाइंस में जो सबसे लंबी लाइन है यानी जो सबसे लंबा जो लैटिट्यूड है वो कौन सा है, उसे कहते हैं इक्वेटर, जिसको हम 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये जो हमारा इक्वेटर है वो अर्थ का सेंटर पॉइंट है यानी मिड पॉइंट है, जो कि अर्थ को जो है 2 पार्ट में डिवाइड करता है. नॉर्दर्न साइड में जो यानी नॉर्थ पोल की साइड में जो पोर्शन होता है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो साउथ पोल की डायरेक्शन में जो पोर्शन होता है अर्थ का उसे साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. और जो ये लैटिट्यूड्स होते हैं इसको जो है 1 डिग्री के जो है इनमें डिस्टेंस के ऊपर जो है इसको ड्रॉ किया गया, यानी इसमें जो प्लेसेस का डिफरेंस है वो 1 डिग्री से हम रिप्रेजेंट करते हैं. There are some important parallels of latitude. They are Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle. You can see in this picture that the middle point of the earth is equator, and in the northern side there is a Tropic of Cancer, and in the southern side Tropic of Capricorn is showing. These are the important parallels of latitude. Now we will discuss about the temperature zones. Different places on the earth receive different amount of sunlight. The amount of sunlight received determines a region's climate. The rays of the sun are concentrated in the areas near the equator.
As we move away the equator, the rays of the sun become slanting. Therefore, places located near the equator have hot and humid climate. On the basis of heat received, they are divided into 3 parts. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अर्थ जो है हमारी, इसके ऊपर जो है जो सन की रेज़ हैं वो एक साथ हर जगह पर एक जैसी नहीं पड़ती हैं, और किसी जगह पर जो है सनलाइट ज़्यादा होती है, किसी जगह पर कम होती है, और इसी से ही जो है किसी भी रीजन यानी किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो उसको हम देखते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। जैसे कि जिस जगह पर भी जो है सन की रेज़ ज़्यादा होती है वहाँ पर जो है कैसा होता है, वहाँ पर जो है हॉट क्लाइमेट होता है, और इक्वेटर के पास जो है सन की रेज़ जो हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। इसलिए जो इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर जो है गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर सन की रेज़ जो है डायरेक्टली पड़ती हैं। और जो जैसे जैसे हम हाइट की ओर बढ़ते हैं यानी ऊपर की ओर पोल्स की साइड में हम जाते हैं, तो वहाँ पर जो है सन की रेज़ जो हैं वो स्लांटिंग हो जाती हैं, यानी कि थोड़ी टेढ़ी होती हैं, तो सीधी नहीं पड़ती। इसलिए जो है वहाँ पर जो है वो ऐसे प्लेसेस जो हैं वहाँ पर हीट जो है ये ऐसे प्लेसेस कम रिसीव करते हैं। इसलिए इन प्लेसेस पर जो है क्लाइमेट कैसा होता है, थोड़ा कोल्ड होता है, यानी यहाँ पर जो है ज़्यादा गर्मी नहीं होती। इनफैक्ट दे आर द कोल्डेस्ट प्लेसेस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की जो है सबसे ठंडे प्लेसेस में भी काउंट होते हैं। और इसी हीट के जो है बेस पर जो है हम अर्थ को जो है 3 पार्ट में यानी 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं। So we will discuss about these zones one by one. First one is in this category is torrid zone. The zone between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn is known as the torrid zone. It is the hottest zone because the sun is directly overhead at least once during the solar year in this zone. It has hot and humid climate. जो टोरिड जोन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाता है, और ये जो है सबसे हॉटेस्ट जोन है, यानी कि सबसे गर्म जोन जो है कहा जाता है इसे, क्योंकि इसके ऊपर जो सन की रेज़ हैं वो साल में एक बार जो है सन बिल्कुल इसके एग्जैक्टली इसके ओवरहेड यानी बिल्कुल ऊपर होता है। इसीलिए जो है इस जोन को टोरिड जोन कहा जाता है, और यहाँ पर जो है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ह्यूमिडिटी भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। द नेक्स्ट जोन इज़ टेम्परेट जोन। दिस जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द एंटार्क्टिक सर्कल इन द साउथ। इट इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. It has moderate climate. The 4 seasons summer, winter, spring and autumn occur in this zone. टेम्परेट जोन कहाँ पाया जाता है? ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में पाया जाता है नॉर्दर्न साइड में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल जो है साउथ में जो है उनके बीच में पाया जाता है। ये जोन ना तो ज़्यादा ही ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ पर जो है मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पर और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। और जो हमारे 4 सीज़न हैं जो हमारे इंडिया के, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, वो इसी जोन में जो है चेंज होते हैं। नाउ थर्ड वन इज़ द फ्रिजिड जोन। दिस जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल in the northern hemisphere and the Antarctic circle and the south pole in the southern hemisphere. It is the coldest zone. ये आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में पाया जाता है, और जो है ये वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट जोन कहलाता है। अर्थ का जो है सबसे ठंडे प्लेसेस में ये काउंट होते हैं, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। These are among the coldest region of the earth. You can see in this picture also the equator is at the center, and torrid zone, then temperate zone and frigid zone. You can see in this picture these 3 zones also. Now the next topic is the longitude. The imaginary lines that runs from north to south are called longitudes. All longitudes are equal in length. The prime meridian divides the earth into the hemisphere and the western hemisphere. It is represented by 0 degree. All meridians are numbered at either side of it up to 180 degree. There is a total of 360 lines of longitude.
लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं कि जैसा मैंने अभी बताया कि कुछ इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। और ये जो लाइंस हैं वो लॉन्गिट्यूड की जितनी भी लाइंस हैं वो सभी उनकी लेंथ जो होती है वो बिल्कुल बराबर होती है। और इसमें जो सबसे जो मिड में जो होती है हमारी अर्थ के बीच में बीचों बीच जो लाइन जाती है जो लॉन्गिट्यूड की, उसे क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और ये प्राइम मेरिडियन जो है वो अर्थ को दो पार्ट में ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। और इस प्राइम मेरिडियन को हम जो है 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके ईस्टर्न साइड में 180 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड होते हैं, और एज वेल एज इसके जो वेस्टर्न साइड में भी जो है 180 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। इसलिए इन सबको मिलाकर जो है टोटल जो है 360 लॉन्गिट्यूड्स जो हैं होते हैं। You can see in this picture also. The next topic is local time. The earth rotates from west to east and it completes one rotation of 360 degrees in one day. It rotates 15 degree in 1 hour or 1 degree in 4 minutes. So for every 15 degree we go eastwards, the time is advanced by 1 hour and the time is behind 1 hour when we go westwards. Local time can also be calculated by the shadow of an object cast by the sun, which is shortest at noon and longest at sunrise and sunset. अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, और अर्थ को जो है अपना एक कंप्लीट रोटेशन करने में यानी 360 डिग्री घूमने में इसको 1 डे का टाइम लगता है, यानी इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन। या हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि हर 15 डिग्री जो है ये 1 घंटे में कवर कर लेती है, यानी 1 घंटे में जो हमारी अर्थ है वो 15 डिग्री जो है रोटेट करती है, या फिर हर 4 मिनट्स में ये 1 डिग्री कंप्लीट कर लेती है। तो ऐसे ही जैसे जैसे हम ईस्टवर्ड जाएंगे, यानी हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की साइड जाएंगे, तो वहाँ उन प्लेसेस पर जो सनराइज़ जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है टाइम जो है वो एडवांस चलता है। यहाँ पर जो है टाइम का डिफरेंस जो है पर 15 डिग्री यानी हर 1 घंटे में टाइम का डिफरेंस पड़ता है। सिमिलरली एज वी गो वेस्टवर्ड, जैसे जैसे हम वेस्ट की साइड जाएंगे, द टाइम इज़ बिहाइंड द GMT, तो यहाँ पर भी टाइम का डिफरेंस पड़ जाएगा, और यहाँ पर जो टाइम है वो GMT से जो है 1 घंटा पीछे चलेगा। इसके अलावा हम लोकल टाइम को जो है सन की रेज से भी काउंट कर सकते हैं कि सन की रेज अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सीधी पड़ती है तो उस टाइम पर जो है उस ऑब्जेक्ट की शैडो जो है वो थोड़ी छोटी होगी। जैसा कि हम देखते हैं कि दोपहर में जो है हमारी शैडो जो है वो थोड़ी छोटी होती है, और इट इज़ लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। और जब सनराइज़ और सनसेट होता है यानी सूरज उगता है और छिपता है, तो उस टाइम पर जो है सन जो हमारी शैडो जो है वो थोड़ी छोटी होती है। Now the next topic is standard time. There is difference in local time from one town to the other. In order to avoid this confusion, a system of standard time is followed by most of the countries. The Indian government has accepted the meridian 82.5 degree east, which passes through Mirzapur near Allahabad in Uttar Pradesh as Indian Standard Time. जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो लोकल टाइम है वो सन की जो है मूवमेंट से जो है काउंट किया जाता है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहता और ऐसा ही होता तो हर टाउन के जो टाइम में जो है डिफरेंस होता, कि हम अगर एक टाउन से दूसरे टाइम में मूव करते तो टाइम जो है उसमें चेंज आ जाता। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो इलाहाबाद में मिर्ज़ापुर में जो मेरिडियन जो वहाँ से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री ईस्ट, उस मेरिडियन को जो है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है मेरिडियन वो फॉलो किया है, उसको एक्सेप्ट किया है। तो इससे जो है हमारा जो है टाइम का जो है कन्फ्यूज़न जो है हमारे को नहीं होता। नाउ इंटरनेशनल डेट लाइन। द प्राइम मेरिडियन विच इज़ 0 डिग्री passes through Greenwich, England. When one travels towards the east, he gains time 12 hours ahead of GMT. While one travels towards the west, he will lose the time 12 hours behind GMT. This is the international date line where the date changes exactly by 1.
As you know that all the countries have accepted the prime meridian as the world's standard timeline. कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पूरे देश की पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने प्राइम मेरिडियन को जो है अपना स्टैंडर्ड टाइम जो है उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, और इसको हम 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे जैसे हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है सन की राइज जो है जल्दी होता है, तो इसलिए वहाँ पर टाइम जो है थोड़ा GMT से आगे चलता है। तो इट इज़ 12 आवर अहेड एज वी मूव टू 180 डिग्री ईस्ट। अगर हम यहाँ पर टोटल जो मेरिडियन होती हैं 180 डिग्री होती हैं, तो अगर हम इस 180 डिग्री को कंप्लीट करते हैं ईस्ट की साइड, तो टाइम में जो GMT का जो अंतर है वो 12 आवर्स का होगा। ऐसे ही अगर हम जो है वेस्ट की साइड जाएंगे GMT से, तो वहाँ पर टाइम जो है वो पीछे चलेगा, और इस साइड भी जो है 180 डिग्री जो है मेरिडियंस होती हैं। तो जैसे ही हम 180 डिग्री मेरिडियंस पे जाएंगे तो वहाँ पर भी टाइम का डिफरेंस जो है 12 आवर्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, जहाँ पर कि लाइन जो टाइम का जो डिफरेंस है वो एक दिन का पूरा पड़ता है। जैसे कि अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेंगे ईस्ट की साइड, तो हम एक दिन का हमें जो है प्रॉफिट होगा, और अगर हम वेस्ट की साइड जो है इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेंगे तो वी विल लॉस 1 डे completely. So I hope you all understand this chapter and enjoyed the session. Thank you so much.